ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ +1 +2 ਅਤੇ 10th ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਨ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ intersection of medians, point of intersection of medians। medians ਕੀ ਹੁੰਦਾ? median ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਿਓ। it is the line through vertex dividing the opposite side in triangle। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਪਾ ਲਈ। ਇਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਡੈਲਟਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਹੋਣ ਜਾਂ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ, 3 ਐਂਗਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈਓ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ A B C, A ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, B ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, C ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। A B C ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ। A ਵਰਟੈਕਸ ਆ, B ਵਰਟੈਕਸ ਆ, C ਵਰਟੈਕਸ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟੈਕਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਟੈਕਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਓ ਇਨ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇਨ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ AD ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਇਹ E ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ BE ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮੀਡੀਅਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ F। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ,
कुछ गल्लां होर ने। सारा काम जिहड़ा हैगा +2 लैवल तक का काम आ सारा। कईयां नूं पता भी होगा तुहाडे विचों, पर ये दसना बहुत जरूरी है क्योंकि जे जिन्होंने नहीं पता हैगा फिर अगे क्वेश्चन समझ नहीं आने उन्होंने। इस वाले क्वेश्चन कंसैप्ट नोट कर लिओ ध्यान नाल। अज वैसे कंसैप्ट ही होणगे, क्वेश्चन तो आपां नैक्सट टाइम करांगे जी, नैक्सट लैक्चर दे विच। सेंट्रोइड आ गया, तो ये गल ध्यान रखनी जिथे तिन्ने मीडियम कट करने, ये गल ध्यान रखनी है तिन्ने मीडियम हमेशा एक पॉइंट पर कट करनगे। जां पहला किता सीगा जे एक पॉइंट पर कट करन, उन्होंने कहा सी अपने कंकरेंट पिछे लिखवाया सीगा जी। एक तो यह गल याद रखनी है कि मीडियम की होंदा हैगा, वर्टेक्स चों लाइन निकलती हैगी है, सामने वाली साइड नूं 2 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड करती हैगी है। सेंट्रोइड की होंदा जिथे तिन्ने मीडियम आपस में मिलते हैगे ने, वो सेंट्रोइड होंदा। एक गल होर ध्यान रखनी आप ये, जे मैं ट्रायंगल छोटा जिहा बनावा इधर, और ट्रायंगल बना लिया अपन, आह मीडियन, यह सेंट्रोइड, तो तिन्ने बनाने आप मीडियन, आ मीडियन तिन्ने मीडियन ने। तो जी गल ध्यान रखनी है, जिहड़ा सेंट्रोइड हुंदा, सेंट्रोइड यह मीडियन नूं 2:1 से डिवाइड करदा। मतलब ये 2 हिस्से होणगे, एक हिस्सा होगा, ये छोटा ना, ਇਹਦਾ एक हिस्सा ਇਹਦਾ डबल इधर होगा, ये डबल होगा इधर पासे, ये 2:1 होगी। ये भी 10th लैवल का कंसैप्ट, जोड़ा मर्जी लै लो, ये मैं रब कर रहा। जे आप आ लै रहे हैं मीडियम, तो छोटा हिस्सा 1 होगा, बड़ा हिस्सा डबल होगा, ये 2:1 होगी। सेंट्रोइड दे विच हो कली ये। जे आप इधरले हिस्से की गल करिए, आ छोटा ये 1:2, 1:2 होएगी। ये सारिया गल्लां यूज़ होणगियां, जिसनों आउंदियां बहुत चंगी गल हैगी आ, हुण कर लो तैयार, जे नहीं आउंदियां हैगी हुण तैयार कर लो। जे हुण भी तैयार ना किते फिर क्वेश्चन समझ नहीं आने इहदे उपर। तो ये उपर बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर विच भी आउणगे, नैक्सट चैप्टरां विच भी आउणगे। तो ये 3 गल्लां हो गईयां अपने को, सेंट्रोइड की होंदा, मीडियन की होंदा हैगा, ते सेंट्रोइड जिहड़ा होंदा हैगा मीडियन नूं 2:1 च डिवाइड करदा होंदा। ये 3 गल्लां हो गईयां इहदे विच। ये फस्ट डेफिनेशन है जी। हुण सैकेंड करन लगे आप इस तो बाद, ये सारियां गल्लां तुसीं ध्यान रखनियां ने। दूजी डेफिनेशन हैगी अपने को सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ये की होंदा होंदा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होंगे नोट कर लो। इट इज़ इदा पाने आप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू साइड एंड बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट्स इट। बाइसेक्ट्स होंदा डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स नूं आपां बाइसेक्ट कहते हैं। जो देखते हैं फिर समझा जो होर ज़्यादा, जिमें आ ट्रायंगल आ, थोड़ा जिहा छोटा करना ट्रायंगल। जिमें आ ट्रायंगल अपने को ABC, आ साइड के उपर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कि होंदा इट इज़ परपेंडिकुलर टू साइड, साइड दे की होगा परपेंडिकुलर होंदा जी जेड़ा एंगल 90 बनावे। एक तो है साइड दे परपेंडिकुलर होगा, दूजी गल उन्होंने बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब कि ये दोनों हिस्से जोड़े है बराबर होंगे, डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर हिस्से में वंडूगा। फिर थोड़े दिमाग चार होगा मीडियन भी तो ही चीज़। मीडियन की सीगा, मीडियन आपां कहा सीगा
कि डिवाइड तो कर रहा है पर परपेंडिकुलर कंपलसरी नहीं है। वो ये वर्टेक्स चो कढ़ना ਆਪਾਂ ਨੇ। वो मीडियम च कंपलसन नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा। बाइसेक्ट तक दो हिस्से बराबर हिस्सों का बनेगा पर जो कंपलसन नहीं हैगी। पर उरे की है अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्ट भी करे। ये च कंपलसन नहीं हैगी लाइन जी हैगी आ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैगा वो वर्टेक्स चो निकले। मतलब वर्टेक्स के विचों निकल भी सकता, ये लाइन विचों भी निकल सकती है, नहीं भी निकल सकती, नहीं पास कर सकती। चलो फिर इतों ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने परपेंडिकुलर तो टू इक्वल पार्ट्स। इत्थे ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट्स एंड परपेंडिकुलर। जिथे तिन्ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मिलणगे इनू कहांगे आप सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर इनू आप सरकम सेंटर कहांगे। जे किसी नूं 9th 10th क्लास की जोमैट्री च एक टॉपिक हुंदा सीगा कंस्ट्रक्शन की हुंदा सीगा जी कंपस रूलर ते कंपस लैके स्केल ते कंपस लैके उहदे विचों आपां डायग्राम बनाते सीगे ट्राइंगल दियां सर्कल दियां। जे उसे याद होवे किसी नूं उत्थे एक वर्ड हुंदा सीगा सरकम सर्कल। ये दस्सण वास्ते है कि शायद किसी नूं याद आ जाए सरकम सर्कल हुंदा सीगा कि तुसीं ट्राइंगल दे बाहर सर्कल बनाउणा हैगा। ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर दे विच सीगा जी। वो किवें बनाया सी शायद ध्यान दे विच होए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किते परपेंडिकुलर ड्रॉ जिथे तिन्ने मिल गए इत्थे कंपस रख के चाहे इस कंपस तो सी तक खोल लो कंपस ओपन कर लो, चाहे इत्थों कंपस इत्थे खोल लो, इत्थों रख के कंपस इत्थे खोल लो। मतलब कंपस रख के इत्थे खोल लिया अपने कंपस खोल के फिर उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया अपने तिना पॉइंटा जो पास करेगा सर्कल जोड़ा होगा। इनू कहने हैं आप सरकम सर्कल। ये सरकम सर्कल होंदा सरकम कहने बाहर। ये ट्राइंगल के बाहर आ सर्कल, ये ट्राइंगल के बाहर सर्कल आ ते आ की आ ये ट्राइंगल जो सर्कल ड्रॉ किया आप सेंटर आ। ये सरकम सर्कल का सरकम सर्कल की होंदा जो बाहर होवे सरकम सर्कल का ये सेंटर आ। इनू कहांगे आप फिर सरकम सर्कल का सेंटर है। इनू कहांगे सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर सेंटर नाल की फायदा होया आप सेंटर नाल फायदा होया जे अपने कोई सरकम सेंटर आ इनू ज्वाइन करिए आप इत्थों आ ज्वाइन करता जी थोड़ा ध्यान देख लियो फिर आ ज्वाइन करता आ ज्वाइन करता थोड़ा जिहा ना ये लाइनां बहुत आ गई तो कॉम्पलीकेटेड ही होगी। मैं छोटी ही बना रहा मैं लाइनां घट बना रहा हैगा वो देख लियो डायग्राम। हाँ सेंटर से मान लो सर्कल सेंटर है ना जिथे तिन्ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं तो ए बी सी जे आप तिन्ने ज्वाइन करांगे ये तिन्ने की होणगे हमेशा इक्वल। क्यों सेंटर तो ये तिन्ने बनणगे रेडियस तिन्ने रेडियस होणगे रेडियस होणगे तो रेडियस की हुंदा सर्कल का हमेशा सेम हुंदा तो तिन्ने डिस्टेंसिस सेम होणगे इहदे विच। ये गल ध्यान रखनी। बाकी होर प्रॉपर्टीज़ भी आउणगियां सर्कल दी देखांगे आप जिवें आउणगियां ताकि तीन गल्लां हो गई ये भी पर सर्कल सेंटर की होंदा जिथे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं आपस दे विच। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होंदा परपेंडिकुलर भी होवे साइड ते बाइसेक्ट भी करे तो सर्कम सेंटर तो तिन्ना वर्टिसेस का डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों बराबर होंदा बिकॉज ये सर्कम सर्कल का सेंटर सेंटर तो तिन्ने डिस्टेंस नूं की कहांगे आप रेडियस वो बराबर होंदा रेडियस बराबर होंदा हमेशा। ये तीन गल्लां हो गई इहदे विच। हुण थर्ड डेफिनेशन करनी है आप इस तो बाद जी ये नाल दा ही सीगा इन सेंटर एक ही होंगे वो देखना इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ it is a point of intersection of angle bisector
एंगल बाइसैक्टर्स। हुण एंगल बाइसैक्टर की हुंदा, इट डिवाइड्स लाइन थ्रू इट इज़ लाइन थ्रू वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट्स द एंगल। बाइसेक्ट वही है डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। जिमें की मतलब बनया ट्रायंगल ABC, पहला तिन्ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने आप, जिथे तिन्ने एंगल बाइसेक्टर मिलणगे उन्होंने की कहांगे आप इन सेंटर। हुण एंगल बाइसेक्टर की है, देखो ध्यान नाल, लाइन बनानी है जी वर्टेक्स चों निकले, वर्टेक्स चों लाइन कटनी है, ये वर्टेक्स लाइन ड्रॉ करनी है। किवें ड्रॉ करनी है, जिहड़ा एंगल होवे इहनूं दो बराबर हिस्से वंडे, जिहड़ा आ वाला एंगल आ, ए वाला एंगल आ, इहनूं बराबर हिस्से वंडे, मतलब इदां आ दोने एंगल बराबर होणगे। साइड की कोई कंपलसन नहीं कि साइड नूं कट्टे बराबर हिस्से वंडे ना वंडे, ये नहीं कहा आपां नूं, एंगल की गल हो रही है। उवें आ वाला एंगल आ, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपां ने जिहड़ा नूं बराबर हिस्से वंड रहा हैगा। फिर आ लिया आपां ने, इत्थों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया आपां जिहड़ा बराबर हिस्से वंड रहा हैगा। जिथे तिन्ने एंगल बाइसेक्टर मिलणगे इहनूं कहांगे आपां इन सेंटर। जिथे तिन्ने बाइसेक्टर्स मिलणगे उन्होंने कहांगे आपां इन सेंटर, इन सेंटर हुंदा। हुण होर गल समझाणी, जिवें पिछे कीता सी आपां ने जी कि सरकम सेंटर की सीगा जी, जिहड़ा ट्रायंगल दे बाहर सर्कल हुंदा हैगा उहदा सेंटर हुंदा हैगा। ये थोड़ा दस्सिया सी कि तुसीं काम पहलां 9th 10th क्लास दे विच कंस्ट्रक्शन चैप्टर तुसीं कर चुके हो काम, उत्ते कंपस नाल बनाए सीगे डायग्राम। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही कंसैप्ट ਸੀ एक होर, जे किसी ध्यान दे विच होवे, नहीं ध्यान से देख लियो। जिथे आपां नूं 9th 10th क्लास दे विच ये कहा गया सी कि सर्कल बाहर ड्रॉ करो, मतलब सर्कम सर्कल ड्रॉ करो। उत्थे एक भी टॉपिक सीगा कि तुसीं इन सर्कल ड्रॉ करना, मतलब अंदर सर्कल ड्रॉ करना। वो किवें ड्रॉ किया सीगा जी, तुसीं एं ड्रॉ किया सीगा, इहदा पहला कंपस रख के इत्थों आर्क लाई ਜਾਂ ਚਾਪ लाई, ਚਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਕ लाई, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਪ ਕੇ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਸਰਕਲ। ਜੇ ਇਨ ਸਰਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇਨ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ। जे इन सर्कल का सेंटर की कहांगे आपां इन सेंटर। इन सेंटर इन क्यों पाया वर्ड, बिकॉज इन सर्कल का सेंटर आ। इन सर्कल इन अंदर नूं कहने आ, ये अंदरले सर्कल का सेंटर हैगा, इस करके आपां इहनूं इन सेंटर कहांगे। तां ये इदां कुछ दस्सिया सीगा। होर देख लो, जे इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आपां, आ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, आ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये तिन्ने डिस्टेंसिस इक्वल होणगे। क्यों, रेडियस नहीं, ये तिन्ने डिस्टेंस इक्वल होणगे रेडियस। तो ये भी अपने को तीन कंसैप्ट आ गए। पहली गल इन सेंटर की होंदा, जिथे एंगल बाइसेक्टर मीट करना आपस इन सेंटर होंदा। दूजी गल एंगल बाइसेक्टर की होंदा, जिहड़ा वर्टेक्स लाइन निकले एंगल नूं बराबर हिस्से वंडे, एंगल नूं बाइसेक्ट करे। दूजी गल, तीजी गल, ये इन सर्कल आ। जे इन सर्कल आ, इन सेंटर तो जे साइड के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, इन सेंटर तो साइड के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, तो तिन्ने डिस्टेंसिस इक्वल होणगे। क्यों, ये तिन्ने रेडियस ने। तीन गल्लां इस याद रखनियां अपने। इस तो बाद चौथा कंसैप्ट, ये चौथा कंसैप्ट हैगा अपने कोल जी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की होंदा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑल्टीट्यूड की हुंदा इट इज़ द लाइन थ्रू वर्टेक्स लाइन बनानी है जी आपां ने एंड परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड दे ये परपेंडिकुलर होगी। जिवें आ बनाई है डायग्राम ABC वर्टेक्स लाइन ड्रॉ करनी है ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਐਂਗਲ ਆਲਟੀਟਿਊਡਸ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। A ਤੋਂ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, B ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਲਟੀਟਿਊਡ, C ਤੋਂ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਥੋ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਆਰਥੋ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥੋ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਹ ਛੋਟੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਲੈਂਥ, ਆ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਅਲੱਗ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ, ਆਹ ਅਲੱਗ ਆ ਮੀਡੀਅਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਅਨ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ, ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ। ਆਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਮੀਡੀਅਨ, ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਲਟੀਟਿਊਡ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਤਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੈਬਿਸਿਰਮ। ਇਹਨਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।